اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیمار ہو جانے کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانے کی حکمتیں اور برکتیں۔ بیمار ہو جانے کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانے کی حکمتیں اور برکتیں، اس موضوع پر، اس ٹاپک پر ڈاکٹر یاسر قاضی نے جمعہ کا ایک خطبہ دیا ہے۔ ان کے انگریزی خطبے کو میں اردو میں پیش کر رہا ہوں۔ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ موت و حیات کے ذریعے ہم انسانوں کی آزمائش کریں، تاکہ موت اور حیات کے ذریعے ہم انسانوں کی آزمائش کرے، ہمارا امتحان لے۔ ہر انسان کی صحت و تندرستی اور اس کی بیماری بھی دوسری چیزوں کی طرح اس کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے۔ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہے، اسی طرح بیماری بھی، تکلیفی بھی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے۔ صحت اور بیماری کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ جیسے دوسری چیزوں کے ذریعے اللہ آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے انسان کا، صحت و تندرستی کے ذریعے اور بیماری کے ذریعے بھی اللہ انسان کی آزمائش کرتا اور اس کا امتحان لیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بیماری اور بیماری کی تکلیفیں انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے بیماری اور بیماری کی تکلیفیں۔ ہر کوئی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح کی بڑی یا چھوٹی بیماری یا طبیعت کی ناسازی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی قسم کی بیماری یا تکلیف یا مزاج ٹھیک نہیں ہے اس کی، ایسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی زیادہ، کوئی کم، کوئی لمبے عرصے تک، کوئی چند دنوں تک، کوئی جلد تندرست ہو جاتا ہے، کوئی دیر سے، اور کوئی بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ بیماری اور مرض، بیماری کو مرض بھی بولتے ہیں، مرض سے مریض۔ بیماری اور مرض مالدار کو بھی لاحق ہوتے ہیں، غریب کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی اور بچوں کو بھی، سب کو لاحق ہو سکتی ہے بیماری۔ ایک مسلمان کا مرض اور اس کی بیماری، وہ بڑی ہو یا چھوٹی، اس کے لیے خیر اور بھلائی ہی ہوتی ہے۔ یہ اصل بات یاد رکھنے کی۔ ایک مسلمان کا مرض اور اس کی بیماری بڑی ہو یا چھوٹی، اس کے لیے خیر اور بھلائی ہی ہوتی ہے۔ اللہ کی تقدیر کے مطابق آتی ہے، جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، اور جب اللہ چاہے گا یہ دور ہو جائے گی۔ تقدیر کے مطابق ہی آتی ہے، اور جب تک تقدیر میں لکھا ہے تب تک رہتی ہے، اور جب اللہ چاہے وہ چلی بھی جاتی ہے۔ جب یہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہے تو ضرور اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ہر کام صحیح ہوتا ہے۔ اس واسطے بیماری بھی جب اللہ دیتا ہے کسی کو تو اس میں بھی خیر ہوتی ہے، اس میں بھی بھلائی ہوتی ہے۔ جب یہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہے تو ضرور اس میں بھی ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ چاہے وہ خیر اور بھلائی کیا ہے ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو، وہ خیر کیا ہے، وہ بھلائی کیا ہے ہماری سمجھ میں چاہے نہ آتی ہو، مگر خیر اور بھلائی وہ ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے بیمار ہو جانے میں، ہمارے ماں باپ کے بیمار ہو جانے میں، ہمارے بیوی بچوں اور ہمارے پیاروں کے بیمار ہو جانے میں اللہ کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔
हमें खुद बीमार हुए तो जितनी तकलीफ़ होती, हमारे बच्चे बीमार हुए तो उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती, हमारे जो जितने प्यारे हैं वो बीमार पड़े तो उनसे भी जो है हम ना तकलीफ़ होती है। तो ये सब क्या है, हमारे लिए खैर और भलाई ही है। सही मुस्लिम में, ये हदीस की मशहूर किताब है सही मुस्लिम, और हदीस की पक्की किताब, सब सही बातें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सही मुस्लिम में ये हदीसें हैं, सही मुस्लिम की ये चंद हदीसें हैं। एक हदीस है, जिस मुसलमान को बुखार की कोई तकलीफ़, बुखार वग़ैरह की कोई तकलीफ़ आती है तो अल्लाह उस तकलीफ़ के बदले में उसके गुनाह इस तरह माफ़ कर देता है जिस तरह दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। जिस मुसलमान को बुखार वग़ैरह की कोई तकलीफ़ आती है तो उस तकलीफ़ के बदले अल्लाह ताला उसके गुनाह झाड़ता है, गिरा देता है, जैसे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं वैसा उसके गुनाह झड़ते हैं बीमारी में, बीमारी के तकलीफ़ की वजह से। एक और हदीस है, जिस मुसलमान को कोई कांटा भी चुभता है, जिस मुसलमान को कोई कांटा भी चुभता है तो उसके बदले में उसके लिए एक दर्जा लिख दिया जाता है और उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है। कांटा भी चुभा, उतनी मामूली तकलीफ़ भी हुई तो अल्लाह ताला क्या है, उसके लिए एक दर्जा लिख देता है, उसका एक गुनाह माफ़ कर देता है। तो ये खैर है, ये भलाई है बीमारी की। अल्लाह ताला यूं ही किसी को तकलीफ़ नहीं देता, अल्लाह की तकलीफ़ देने में हिकमत होती है, उसमें हमारी भलाई होती है, वो तकलीफ़ छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। एक और हदीस है, किसी मुसलमान को जो भी कोई मुसीबत पहुंचती है, या सिर्फ बीमारी नहीं, कोई सी भी मुसीबत हो, जिस मुसलमान को कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो उसे, यानी उस मुसीबत को उसके गुनाह का कफ़ारा कर दिया जाता है। गुनाह का कफ़ारा बोले तो गुनाह मिटा देना, उसकी वजह से अल्लाह उसके गुनाह मिटा देता है, उस तकलीफ़ की, उस मुसीबत की वजह से जो उसे आ पड़ी। मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से आती, अल्लाह की तरफ से जो भी आता उसमें भलाई होती, खैर होता। और यहाँ क्या है, क्या बताया हमने कि उसकी वजह से गुनाह माफ़ होता है, वो तकलीफ़ की वजह से। एक और हदीस है, किसी मोमिन आदमी को जो कोई मुसीबत पहुँचती है, कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसके लिए एक नेकी लिख देता है या उसका कोई गुनाह मिटा देता है। अलग अलग तरीक़े से बयान करे हैं पैगंबर, क्या होता है, उसके लिए एक नेकी लिख देता, यानी तो उसका कोई एक गुनाह मिटा देता है। किसके बदले में? एक कांटा भी उसे चुभा, कांटा चुभने से जो तकलीफ़ होती वैसी तकलीफ़ किसी भी वजह से पहुँचे दे उसे, उसके ज़रिए से अल्लाह क्या करता, उसके लिए एक नेकी लिख देता या उसका एक गुनाह, कोई गुनाह मिटा देता है। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन आदमी को जब भी कोई तकलीफ़ या ईज़ा या कोई बीमारी या रंज या कोई फ़िक्र ही हो तो उससे उसके गुनाहों का कफ़ारा कर दिया जाता है। अब बात अभी जो है ज़रा लंबी हो गई। क्या है, कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी ईज़ा के माने भी तकलीफ़ देने वाली कोई चीज़, कोई बीमारी या रंज, गम या कोई फ़िक्र, कोई भी फ़िक्र हो तो उससे उसके गुनाहों का कफ़ारा कर दिया जाता है, उसके ज़रिए से उसके गुनाह दूर हो जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं। एक और हदीस है, एक मुसलमान को जो भी तकलीफ़ पहुंचती है, जो ठोकर भी उसे लगती है तो वो उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। अंदाज़ा लगाओ, ठोकर भी लगी, ठोकर लगी तो तकलीफ़ होती, अल्लाह ताला उसका भी हिसाब रखता, अल्लाह ताला जो है उसको भी देखता। और अगर वो मोमिन है, मुसलमान है, तो ठोकर लगने से जो तकलीफ़ हुई उसे, उसके बदले में उसका एक गुनाह
معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب کے ہاں گئے، ایک صحابیہ، ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے، تم کانپ رہی ہو، بخار سے تپ رہے تھے، بہت زیادہ بخار تھی، تو ان کا حال پوچھنے گئے، عیادت بولتے اسے، بیمار پرسی، بیمار کے پاس جا کے اس کا حال پوچھنا، اس سے اچھے باتیں کرنا۔ تو جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر بولے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کانپ رہی ہو۔ انہوں نے کہا بخار ہے، اللہ اس بخار میں برکت نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو، انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ بھٹی، بخار بھی بھٹی، زوردار بخار ہے تو انگار ہے سر کا رہتی، تو مثال دے کو بول رہے ہیں پیغمبر، بھٹی میں جو ہے لوہے کو رکھ کو، لوہے کو پیور کرتے، ویسا بخار آ گیا انسان کو تو اس بخار کے ذریعے ان پیور ہوتا، اندر اس کے گناہ دھلتے رہتے، اس کا میل کچیل گناہ کا دور ہو جاتا۔ تو بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم کی ان حدیثوں سے معلوم ہوا، یہ سب حدیثیں صحیح مسلم کی تھیں، حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم سے، ان حدیثوں سے ہم نے کیا معلوم ہوا کہ مسلمان کی کسی تکلیف، کسی مصیبت، کسی بیماری یا رنج یا فکر یا کانٹا چبھنے یا ٹھوکر لگنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک درجہ لکھ دیتا ہے، اس کا ایک درجہ اونچا کرتا، جنت کا درجہ، جنت میں ایک درجہ اونچا کر دیتا ہے۔ تو یہ باتیں ان حدیثوں سے معلوم ہوئیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار آدمی سے ملنے گئے، آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، جا کے ان سے بولے میں خوشی سنا رہا ہوں تجھے، میں خوشخبری دیتا ہوں تمہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بیماری جہنم کی ایک سزا کے طور پر ہے جو تمہیں دنیا ہی میں دی جا رہی ہے تاکہ تم آخرت میں جہنم کی سزا سے بچ جاؤ۔ جہنم کی سزا سے بچانے کے لیے اللہ دنیا میں تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے، بیماری کی کوئی تکلیف ہے، کوئی بھی تکلیف، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں جو ہے وہ سزا تم نہ دے کر آخرت میں تم نہ جہنم کی سزا سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ خوشخبری میں دے رہا ہوں تم نہ، پیغمبر بولے ان کو۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث کی ایک اور کتاب۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے جنہیں وہ چاہتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، بیماری مصیبت آئی تو کوسنا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کسے پسند کرتا اسے بیماری دیتا کہتے، کئی ہوا تو وہ بیماری کے ذریعے سے اس کے گناہ دھوتا اور اسے جنت کے لیے تیار کرتا۔ ہاں، تو اس آزمائش کے ذریعے انہیں گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے تاکہ جب وہ آخرت میں اس سے ملیں تو گناہوں سے پاک صاف ملیں اور وہ انہیں جنت عطا کرے۔ جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہمیں صحت و تندرستی کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ صحت تندرستی کیا ہے، کب معلوم ہوتا؟ بیمار پڑے تو، بخار ہی تو کیا تو دکھ درد ہوا تو معلوم ہوتا، یہ نہیں ہونے سے پہلے میں کتنا اچھا تھا۔ تو بیماری کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں، یعنی صحت و تندرستی کی قدر و قیمت ہمیں اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر و قیمت لوگوں کو کم ہی معلوم ہے، کم معلوم، لوگوں کو زیادہ اس کی قدر نہیں،
लोगों को ज़्यादा इसकी कीमत नहीं मालूम। दो चीज़ें हैं, एक है तंदुरुस्ती और दूसरी है फुर्सत। तंदुरुस्ती और फुर्सत की कदर लोगों को कम मालूम है। तंदुरुस्ती की कदर कीमत हमें उस वक्त मालूम होती है जब तंदुरुस्ती जाती रहती है। फुर्सत की कदर कीमत उस वक्त मालूम होती है जब फुर्सत नहीं मिलती। अक्लमंद वो है जो तंदुरुस्ती को गनीमत जाने, बीमार हो जाने से पहले जो तंदुरुस्त की हालत है वो हालत को गनीमत समझे, अच्छा चांस मिला है मुझे क्या करने का, नेक काम करने का, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर को अल्लाह को खुश और राज़ी करने का। बीमारी की हालत में वैसा नहीं कर सकता जो तंदुरुस्त की हालत में कर सकता है। तो अक्लमंद वो है जो तंदुरुस्ती को गनीमत जाने, बीमार हो जाने से पहले, और अक्लमंद वो है जो फुर्सत को गनीमत जाने, मशगूलियत से पहले, बिज़ी हो जाने से पहले। बिज़ी हो गया तो फुर्सत को तरसता, फुर्सत ही नहीं। तो वो फुर्सत जब है तो उसे गनीमत समझो, उसकी कदर व कीमत समझो, और फुर्सत में जो करना है वो कर लो, और अपनी आखिरत बनाने के लिए जो कुछ करना है कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, अबू दाऊद हदीस की एक और बड़ी किताब है, बड़ी अच्छी किताब। कभी ऐसा होता है कि एक शख्स के लिए अल्लाह ताला जन्नत की एक बुलंद मंजिल मुकर्रर कर देता है। उसकी तकदीर में लिख दिया अल्लाह, जन्नत में ये ऊंचा मकाम है उसका, उसकी तकदीर में लिखा है, अल्लाह ताला फैसला कर दिया है। वो जन्नत की उस बुलंद मंजिल को अपने नेक आमाल से हासिल नहीं कर पाता। जन्नत किसे मिलती? ईमान ला को नेक अमल करे तो जन्नत मिलती। अल्लाह ताला इस आदमी को एक ऊंचा मकाम लिख दिया है, मगर उसका अमल वहाँ तक नहीं पहुँचा रहा है। उसका अमल उतना अच्छा नहीं है कि वो जन्नत का उतना ऊंचा मकाम हासिल कर सके। तो वह जन्नत की उस बुलंद मंजिल को अपने नेक आमाल से हासिल नहीं कर पाता। तब अल्लाह ताला उसे बीमारी में मुब्तला कर देता है और उसे उसके माल के नुकसानात में डालकर उसे आज़माता है, या उसे उसके बच्चों के ज़रिए आज़माइश में डाल देता है, यहाँ तक कि वह सब्र करके उस आज़माइश में पूरा उतरता है और जन्नत का वो बुलंद मकाम व मर्तबा पा लेता है। यह है अल्लाह का तरीक़ा। जन्नत में लिख दिया एक ऊंचा मकाम, अपने अमल के ज़रिए से वह मकाम हासिल नहीं कर सका उन्हें, मगर अल्लाह का फ़ैसला हो चुका। तो अल्लाह ताला क्या करता, वह मकाम देने के वास्ते उसे बीमारी में मुब्तला कर देता, यानी तो उसके माल का कोई नुकसान हो जाता, यानी तो उसका कोई बच्चा बीमार पड़ जाता, या कोई तकलीफ़ बच्चों के बारे में उसे आ जाती। तो ऐसे तकलीफ़ों की वजह से अल्लाह उसे आज़माइश में डालता। वो नेक बंदा समझ जाता ये अल्लाह की डाली हुई आज़माइश है, सब्र करता, और सब्र करने की वजह से अल्लाह ताला उसे वो मकाम दे देता जो उसके लिए लिख दिया है। अपने अमल से जो मकाम उसे नहीं मिल सका, ये तकलीफ़ की वजह से वो मकाम मिल गया उसे। तो यह है तकलीफ़ की हिकमत, यह है तकलीफ़ का फ़ायदा और तकलीफ़ की बरकत। कोई सी भी तकलीफ़ हो, किसी भी किस्म की तकलीफ़, इस हदीस को हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखने की बात है ये। और इस तरह की जो आज़माइश भी हमें आ पड़े उस पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखना चाहिए। अजर बोले तो इसका बदला, मैं जो सब्र कर रहा हूँ, तकलीफ़ उठा रहा हूँ, अल्लाह मुझे इसका बदला देगा, अल्लाह ताला मुझे इसका सवाब देगा, ये उम्मीद रखना, सब्र करना, ये जो है सबक है इस हदीस का। बीमारी, दुख दर्द और तकलीफ़ में सब्र की तरबियत होती है, सब्र की ट्रेनिंग, सब्र की तरबियत होती है। तो बीमारी का एक और फ़ायदा ये जो है एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। बीमारी किस बात की ट्रेनिंग लेने की? सब्र की ट्रेनिंग। बीमारी में मजबूरन सब्र करना ही पड़ता,
बीमारी की जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ को सहना ही पड़ता। दवा लिए, इंजेक्शन लिए, क्या लिए भी तो ज़रा कम होता, फिर जाता ज़रा, फिर तकलीफ़ होती। तो ये सब्र की ट्रेनिंग है बीमारी। और सब्र करने वाले अल्लाह को पसंद हैं। देखो कैसा मामला, बीमारी सब्र की ट्रेनिंग है, सब्र करने वाले अल्लाह को पसंद हैं। कुरान में है अल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। कुरान में है, कई जगह है ये बात। सब्र किताबें पढ़ने से और बयानात सुनने से हासिल नहीं होता, बल्कि बीमारी, दुख दर्द और तकलीफ़ में सब्र करने से सब्र हासिल होता है। ये ट्रेनिंग है। सब्र करने से सब्र हासिल होता, सुनने से पढ़ने से सब्र हासिल नहीं होता। जन्नत सब्र करने की वजह से हासिल होती है। यह है सब्र का फल। सब्र का फल कितना बड़ा है बोले तो, सब्र की वजह से इंसान को जन्नत मिलती है। जन्नत के फरिश्ते जन्नत वालों से कहते हैं, कुरान मजीद में है सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलाम है तुम पर तुम्हारे सब्र की वजह से। दुनिया में तकलीफ़ में जो तुम्हें सब्र करे उसका जो है अल्लाह तुम्हें ये जन्नत में तुम्हारा फल दे रहा है। तुम पर सलामती हो। फरिश्ते सलाम कर को उनको वेलकम करेंगे, जन्नत में अंदर बुला लेंगे। सलाम है तुम पर तुम्हारे सब्र की वजह से। ज़िंदगी की जिद्दोजहद में सब्र से काम लेने से सब्र हासिल होता है। सिर्फ बीमारी से नहीं, ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ आती, कोई भी किस्म की तकलीफ़ हो, वो तकलीफ़ को जो है रोना पलाना, शिकायत करना, ये अलग चीज़ है। इससे क्या भी हासिल नहीं होता। सब्र करना, तकलीफ़ का मुकाबला करना, तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करना, इससे सब्र मिलता है। और सब्र का बदला जन्नत है। सब्र ज़िंदगी की जिद्दोजहद में सब्र से काम लेने से सब्र हासिल होता है। तो इस तरह बीमारी इंसान को सब्र की ट्रेनिंग देती है। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर, ये एक बड़े आलिम गुज़रे हैं, एक सहाबी के बेटे हैं, ये ताबई बोलते। हज़रत ज़ुबैर बहुत बड़े सहाबी थे। और इनकी वालिदा, इनकी नानी, इनकी दादी हज़रत अस्मा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन। तो इस तरीके से कई रिश्ते इनके बनते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये जो है बड़े बुज़ुर्ग हैं। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर को पैर में कोई ऐसी बीमारी हो गई कि उनका पैर काटना पड़ा। वो ज़माने में अनस्तीशा नहीं था सुन करने का, ऐसे जो है काटते थे। तो उनका पैर काटना पड़ा। जिस दिन उनका पैर काटा गया उसी दिन उनके घर की छत गिर पड़ी और उनका एक बच्चा मर गया। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह तेरी तारीफ़ है। ऐ अल्लाह, तूने मुझे 7 बच्चे दिए, एक ले लिया, 6 छोड़ दिए। ऐ अल्लाह, तूने मुझे 2 पाँव दिए जिनसे मैं अब तक चलता रहा, तूने मेरा 1 पाँव ले लिया, दूसरा छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर की सोच। हमें भी ऐसा सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचना। जो नहीं रहा उस पर रोना नहीं, बल्कि जो रह गया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, जो चले गया उसके बारे में रोते रहते, ऐसा नहीं होना। जो नहीं रहा उस पर रोना नहीं, बल्कि जो रह गया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। जब हम बीमार हो जाते हैं तो अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआ करने लगते हैं, ज़्यादा नमाज़ पढ़ने लगते हैं, ज़्यादा खैर खैरात करने लगते हैं, कुरान की सूरतें पढ़कर दम करते हैं। बीमारी और बीमारी के तकलीफ़ दूर करने के लिए हम ये सब करते हैं। अगर नहीं करते तो करना चाहिए।
बीमारी में अल्लाह याद आना, बीमारी में अल्लाह से नज़दीक होने की कोशिश करना, नमाज़ों के ज़रिए, दुआ के ज़रिए, खैर खैरात करके, ये भी बहुत अहम, बीमारी के हाल में खैर खैरात करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करना। तो बीमारी का सामना करने का ये एक तरीक़ा है। और दूसरा तरीक़ा क्या है, बीमारी दूर करने के लिए हम इलाज भी कराते हैं और दवा लेते हैं। दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है, ये याद रखने की बात है। दवा भी ज़रूरी है, दुआ भी ज़रूरी है एक बीमार आदमी के लिए, जो तकलीफ़ में, परेशानी में मुब्तला है, उसके लिए। एक सहाबी ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या हम बीमार हो जाएं तो दवा लें, इलाज कराएं? आपने फरमाया, हाँ, इलाज कराओ, दवा लो। अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज भी रखा है सिवाय मौत के। हर बीमारी का इलाज है, कोशिश करो बीमारी का इलाज कराने की, बीमारी को दूर करने की। यह है इस्लाम की तालीम। बीमारी आ गई तो दवा लेना, बीमारी को दूर करने की कोशिश करना, और जब तक बीमारी है तब तक सब्र करना, दुआ करते रहना। ये मुसलमान का तरीक़ा ऐसा होना चाहिए। तो ये सब बरकतें हैं, फ़ायदे हैं बीमारी के, तकलीफ़ उठाने के, दुख दर्द सहने के। हमने बीमार हो जाने की तकलीफ़ों की बरकतें और फ़ायदे ज़िक्र किए हैं। इतने फ़ायदे हैं बीमारी के, तकलीफ़ उठाने, मुसीबत उठाने के। क्या इसका ये मतलब है कि हम बीमारी और बीमारी की तकलीफ़ों की तमन्ना करें, आरज़ू करें? क्या इसका ये मतलब है? नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के यहाँ गए जो बहुत बीमार हो गए थे, बीमारी की वजह से लाग़र और बहुत कमज़ोर हो गए थे, मौत के करीब पहुँच गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुमने कोई दुआ की थी? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि जो सज़ा मुझे आखिरत में मिलनी है वो मुझे दुनिया में ही दे दी जाए। ऐसी दुआ किया था मैं, इस वजह से उनकी वो हालत हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुभान अल्लाह, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी दुआ मत करो। जहन्नुम में जो सज़ा मिलने वाली है, तुम ये सज़ा वो दुनिया में नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ, अल्लाह ताला जो डालता है, अल्लाह ताला देख को डालता, किसे कितना देना, कितना तकलीफ़ देना, कौन सी बीमारी देना, अल्लाह को मालूम है। मगर तुम्हें खुद दुआ करे कि या अल्लाह मुझे बीमारी दुनिया में दे, दुनिया में सज़ा दे, आखिरत में देने को, तो ये जो है सही नहीं है। तो ऐसा ना करो, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी दुआ ना करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, बल्कि अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी की दुआ करते रहो। तुम्हें जैसी दुआ करे वैसा करने के बजाय माफ़ी की दुआ करते रहो। या अल्लाह मुझे माफ़ कर, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा। तो ये माफ़ी की दुआ करो अल्लाह से। तो इससे मालूम हुआ कि हमें बीमारी की दुआ नहीं करनी चाहिए। मगर जब बीमारी आ पड़े तो समझना चाहिए कि अल्लाह की तकदीर से है। बीमारी मंगना नहीं अल्लाह से, अल्लाह ताला बीमारी दिया तो समझना अल्लाह ताला की तकदीर है, ये अल्लाह का फ़ैसला है। तो समझना चाहिए कि ये अल्लाह की तकदीर से है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं अल्लाह से क्या दुआ करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि अल्लाह से आफ़ियत की दुआ करते रहो। आफ़ियत, ये लफ्ज़ याद रखना, आफ़ियत की दुआ करते रहो। आफ़ियत बोले तो बीमारी से हिफाजत, दुख दर्द से, तकलीफ़ से हिफाजत, मुश्किलात और मुसीबतों से हिफाजत, इसे आफ़ियत बोलते। तो जो भी दुआ करते
اس میں یہ بھی دعا کرو یا اللہ مجھے عافیت دے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ دعا بہت کرو بولتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں معافی کی درخواست کرتا ہوں اور عافیت کی درخواست کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے تکلیف سے بچا۔ عفو و عافیہ، یہ دو لفظ بھی یاد رکھنا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ دعا سکھائی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا عافیت کی دعا سے بھی بہتر کوئی دعا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، عافیت سے بہتر کوئی دعا نہیں، بہترین دعا عافیت کی دعا ہے، تمہیں عافیت کی دعا کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرتے تھے اور کرنے کی ہدایت بھی دیتے تھے۔ یہ آپ کی دعا حدیث کی کتاب ابو داود میں ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہم استر عوراتی و آمن روآتی۔ اللہم حفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت مانگتا ہوں، دنیا کی عافیت بھی آخرت کی عافیت بھی میں مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں اپنے دین اور دنیا اور اپنے اہل و عیال اور مال کے بارے میں معافی اور عافیت مانگتا ہوں۔ کس کے؟ دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں۔ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے اور حفاظت کی درخواست کرتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں۔ اے اللہ میری شرم اور عار والی باتوں کی پردہ دری فرما۔ بیماری کی حالت میں ایسا نہ ہو کہ جو میرے شرم کی باتیں ہیں وہ کھل جائیں، ایسا جو ہے میرے ساتھ نہ ہو۔ میرے شرم و عار والی باتوں کی پردہ دری فرما، میری دل کی گھبراہٹ دور فرما کر مجھے امن عطا فرما۔ اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر کی جانب سے، اور میں تیری عظمت کے واسطے سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے کی جانب سے کوئی آفت آئے۔ اتنی بھرپور دعا ہے یہ، ایسی دعا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عفو والعافیہ، عفو اور عافیت، عفو معافی، عافیت حفاظت، مصیبت تکلیف سے حفاظت۔ یہ تھی بات اس کی جب کہ ہم بیمار پڑیں، جب دوسرے بیمار ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں۔ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، اس سے ملیں، اس کا حال پوچھیں، اسے دلاسا دلائیں، اسے خوش کریں اور اسے صحت و تندرستی کی دعا دیں۔ اسے عیادت بولتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا کہ میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے اللہ میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو اللہ ہے،
अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरा फ़ला बंदा बीमार हुआ और तूने उसकी इयादत नहीं की, अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे उसके पास पाता। ये है इयादत की बरकत और इयादत की अहमियत। कभी ऐसा भी होता है कि बीमारी की तकलीफ़ से कोई मौत की ख्वाहिश करता है, दर्द इतना बढ़ जाता, तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती, या अल्लाह मुझे मौत दे बोलता। कभी ऐसा भी होता इंसान के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है कि ऐसा ना करो, मौत ना मांगो अल्लाह से। बीमारी वगैरह की तकलीफ़ की वजह से मौत की तमन्ना ना करो। अगर तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर हो तो यूँ दुआ करो कि ऐ अल्लाह मुझे ज़िंदा रख जब तक कि ज़िंदगी मेरे लिए खैर है, अच्छी है, और मुझे मौत दे दे जब तू जाने कि मौत मेरे लिए खैर है। ऐसी दुआ करो। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो ये दुआ करो, या अल्लाह जब तक ज़िंदगी मेरे लिए खैर है मुझे ज़िंदा रख, और जब मौत मेरे लिए खैर है तो या अल्लाह मुझे मौत दे दे। यानी अल्लाह पर छोड़ देना, हमें ख़ुद नहीं मांगना, अल्लाह पर छोड़ देना। एक प्यारी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आखिरी बात है आज की और बहुत अहम बात है, ज़रा गौर से सुनना। जो कोई इस हाल में सुबह करे कि उसकी सेहत अच्छी है, वो अपने घर में खैरियत से है और उसके पास उस दिन के लिए खाना मौजूद है, तो वो ऐसा है कि उसे दुनिया भर की नेमतें मुयस्सर हैं। उसे इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर सुनिए क्या है, जो कोई इस हाल में सुबह करे, हर सुबह जब उठा तो जो है अपने हाल पर गौर करना, देखना कि मैं सेहतमंद हूँ, और देखना कि घर में हूँ और घर में खाने के लिए है, आज के दिन के लिए, एक दिन के लिए सही, एक दिन का खाना है, तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और समझना चाहिए कि दुनिया भर की नेमतें उसे मुयस्सर हैं। तो ऐसा शुक्र करना अल्लाह का। जो कोई इस हाल में सुबह करे कि उसकी सेहत अच्छी है, वो अपने घर में खैरियत से है और उसके पास उस दिन के लिए खाना मौजूद है, तो वो ऐसा है कि उसे दुनिया भर की नेमतें मुयस्सर हैं। उसे इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। दुआ है, अल्लाहुम्मा आफिना फ़ी अबदानिना, ऐ अल्लाह हमें हमारे जिस्मों में आफ़ियत दे, आमीन। अल्लाहुम्मा आफिना फ़ी अस्माइना, ऐ अल्लाह हमें हमारे नामों में आफ़ियत दे, आमीन। अल्लाहुम्मा आफिना फ़ी अबसारिना, ऐ अल्लाह हमें हमारी आँखों में आफ़ियत दे। ये भी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।